Hello everyone. I know now for only few days are left for the exam, and many student ask me for biology important questions. Question तो suppose कहीं से भी मिल जाते, but how to write the proper answer to get out of marks for that question, that is very important, and that only I am going to discuss today. So I am going to discuss today's our topic is our environment. और our environment में हम कुछ questions देखेंगे which may come for the board examination, right? As I'm teaching from last many years, so I know certain questions are definitely going to ask in board examination, and that is why I'm going to make this video so that the children will be getting the exact idea how the type of the question will be for the biology in the exam. Okay, so let's start with. So my first question, as I told you, the topic is our environment. The first question is what is ecosystem? So you must know the definition of ecosystem, interaction between biotic and abiotic component. So when the question will be asked ecosystem, you have to write the definition. That's it. See, many teachers, many classes people will suggest you कि MTG use करो, फिर S-CHAN use करो, पर seriously I will tell you only use NCERT. कुछ भी यूज मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो. सो बिकॉज द क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, एंड दैट इज वाई इफ यू रीड इट थरली यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट. सो इसलिए मैं एनसीईआरटी में जो है उसी के क्वेश्चंस देने वाली हूँ. नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैम ये नहीं दिया, मैम वो नहीं दिया. आई टेल यू चिल्ड्रन, जो एनसीईआरटी में जो लिखा नहीं है उस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर. ओके, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है आप लोग उतना ही करो, और मैं जो क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो उसी में से देने वाली हूँ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज इकोसिस्टम. then you have to write in that only, you have to write the definition. Okay, what is ecosystem. Then second question, types of ecosystem. Now when you are asked for the types of ecosystem, so there are two types of ecosystem as we know, natural ecosystem and man-made ecosystem. Okay, but when you will be writing ki natural ecosystem and man-made ecosystem, at that time you should write the example also, like if natural ecosystem, then you can write the example of river, pond water. When it is man-made ecosystem, you can write the example like garden. Okay, wildlife sanctuary. Next, biodegradable substance, difference between biodegradable and non-biodegradable substance. This is the one of the favorite question of board. So it may ask for the board examination. So differences, whenever it is asked, number of difference is equal to the marks. Like अगर 2 मार्क के लिए है तो you have to write 2 differences. अगर 3 मार्क के लिए है तो you have to write 3 differences, right? Then food chain. अब फूड चेन की जब डेफिनेशन पूछी तो आप लोगों को फूड चेन भी लिखना है और एक आधा एग्जाम्पल भी लिखना है. बहुत फैंसी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. ओनली यू कैन राइट ग्रास, डियर, लायन, दैट्स इट. उसके आगे बहुत फैंसी, बहुत बड़ी फूड चेन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, एक छोटी सी फूड चेन हमें मेंशन करनी है वहाँ पे. ओके, प्लांट, डियर, लायन और ग्रास, डियर, लायन, दैट्स इट. नेक्स्ट कम food web. Same is applicable for food web also. Food web, we have to just write the definition. It's a network of the different food chain. Like for, and we have to give example. As I told you, simple example. For example, as we have written grass, deer, lion. So deer is eaten by lion also. Deer is eaten by the tiger also. So if we make it, it will become complex food chain. That's it. Okay. Next we'll go 10% energy law. This is very important question and one of the favorite question of board examination. 10% energy law. In this, whenever 10% energy law is there, first statement that you are going to draw, wherever energy related something is there, like 10% energy law, or another question is there, the flow of energy in the ecosystem is unidirectional. Like this, whenever energy based questions are there, always start with the statement the ultimate source of energy is sun. When you are starting with the statement, you are telling them that we know that the ultimate source of energy is
sun. So you will start with ultimate source of energy is sun, and whatever the sun is having energy, out of that energy the plants are absorbing 1% energy. अब वो 1% एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपने लिए यूटिलाइज करते, सम एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट, और बाकी जो बची 10% एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल के पास जाती है. ओके, इन दिस ऑल्सो यू कैन यूज द सेम एग्जाम्पल. एज आई टोल्ड यू, डोंट गिव मच फैंसी एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सिंपल रखो, मतलब सामने वाले को भी चेकिंग के लिए ईजी जाता है, तो ईजी जाता है तो वो मार्क्स भी जल्दी जल्दी देगा, राइट. तो 10% एनर्जी लॉ लिखोगे तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. देन 1% सन से एब्जॉर्ब होती है, 99% चली जाती है. देन आफ्टर दैट जो 1% एब्जॉर्ब हुई उसमें से प्लांट कुछ यूज करता है, 90% प्लांट इज यूजिंग, 10% इज गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और वहां से 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाती है. तो फ्रॉम वन टू अनादर, जैसे अगर आपने प्लांट डियर लायन का यूज किया है तो प्लांट को 1% सन से आ गई, प्लांट से डियर को 10% जाएगी, और डियर से लायन या टाइगर वॉट एवर यू हैव टेकन उसको 10% जाएगी. बस ये सिंपल इसमें आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स. नाउ इन ट्रॉफिक लेवल्स, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल आर नथिंग बट द स्टेप्स ऑफ द फूड चेन. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर ट्रॉफिक लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपको एक पिरामिड ड्रॉ करना है, और वो पिरामिड में नीचे से ऊपर आपकी सारी ट्रॉफिक लेवल बतानी, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एंड यू कैन टेल what the role of producer, what primary consumers are, what secondary consumers are, and what tertiary consumers are, giving each example of each. Okay, then as I told you, the next question is the flow of energy is unidirectional. This is a very 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 favorite question. अगर ये ऐसे नहीं आया तो वो अलग तरीके से आएगा, जैसे कि आपको शायद एक केस स्टडी दिया जाएगा, केस स्टडी में वो पूछेंगे कि टाइगर के पास की जो एनर्जी क्या वो डियर के पास जा सकती है, अगर नहीं जा सकती है तो क्यों नहीं जा सकती है. तो सेम क्वेश्चन विल बी आस्क इन अ डिफरेंट वे. क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर सेम रहने वाला है, एंड द आंसर, अल्टीमेट आंसर विल बी, एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट एनर्जी, फर्स्ट स्टेटमेंट एज यूजुअल द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों, कि एक बार सन से प्लांट्स आर द ओनली एब्जॉर्बन, मतलब एब्जॉर्बेंट की जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी क्यों, ठीक है. बाकी कोई ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स कांट एब्जॉर्ब, ओनली प्लांट कैन एब्जॉर्ब. सो प्लांट कैन एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी, और वो फोटोसिंथेसिस के जरिए दे विल मेक द फूड, एंड द एनर्जी 10% एनर्जी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल. अब जो नेक्स्ट लेवल 10% ट्रांसफर हुई है उसमें जो 90% बची हुई 90% उसमें से कुछ एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट, and other energy, remaining energy was used by the plant for the different processes of the plant. तो जो 10% पास हुई है वो 10% will never return back to the plant. It will be with the next tropic level only. Okay, that is for example for deer, it will be for next tropic level, इसलिए वो कभी रिटर्न नहीं होगी, and that is why the flow of energy is unidirectional. Okay, अगर आपको बिना एग्जाम्पल लिए आता है तो यू कैन सॉल्व इट, यू कैन राइट इट. अगर नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल ले लो और उसे एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी पिरामिड. अभी अगेन इट इज एनर्जी पिरामिड, तो पहले तो आप एज आई टोल्ड यू द सेम स्टेटमेंट यू विल बी राइटिंग, और उसके बाद में एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, अपराइट को एक अंडरलाइन कर देनी है. अंडरलाइन की वजह से क्या होगा, द जो पेपर चेकर रहेगा वो तुरंत उसको मार्क्स दे देगा. ओके, सो एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. ओके, और यही अगर आप देखोगे द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और एनर्जी पिरामिड, ये क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन है, तो आंसर भी क्वाइट सिमिलर रहेंगे. इसलिए मैं बोल रही हूँ 10% एनर्जी लॉ, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी पिरामिड, ये सारे क्वेश्चन अगर आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं कैसे लर्न आउट करूँ चीज़ें, तो मैं आपको बताऊंगी इन तीनों के लिए. अगर आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, जो अच्छे हैं उनको तो बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना है. अगर एनर्जी पिरामिड बोला है तो एनर्जी पिरामिड को ही आपको एक्सप्लेन करना है, लाइक कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर से जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी
कम कम होती जाती है, 10% एनर्जी पास होती है, वो कम कम होती जाती है। बट जो जैसे मैंने बोला जो स्ट्रगल कर रहे पासिंग के लिए, वो इन तीनों के लिए क्वाइट सिमिलर आंसर लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो ये वाला आंसर जो यूनिडायरेक्शनल वाला आंसर है वो उसको चिपका दो, कोई बात नहीं है। यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट सम मार्क्स फॉर दैट। ओके, नाउ हाउ डज ओजोन फॉर्म। अब हाउ डज ओजोन फॉर्म में जो टू स्टेप्स बुक में दी हुई है ओजोन की, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ वो दिखने वाला है कि आपने वो दो जो रिएक्शन है वो लिखी कि नहीं, और उसके बाद में बट ऑब्वियसली उसका एक्सप्लेनेशन ही नीचे लिखा होगा, ये कंसिडर्ड रहता है जो पेपर चेकिंग करता है। क्योंकि मैं खुद भी बोर्ड के पेपर चेकिंग के लिए जाती हूँ, तो आई नो हाउ इज़ द मेंटालिटी ऑफ दैट पेपर चेकर, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, दो जो वो रिएक्शन लिखने वाले वो बहुत प्रॉपरली लिखनी है। जैसे O2 गिव्स O+O, ये कौन करता है, यूवी रेडिएशन करता है, और फिर O2+O गिव्स O3। ओके, अब यहाँ पे ये जो यूवी वर्ड है ऑन द रिएक्शन यू हैव टू राइट इट वेरी प्रॉपरली, क्योंकि अगर वो नहीं लिखा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके हाफ मार्क कट हो। और अगर आपने ये दो रिएक्शन ठीक से लिख ली, नो बडी इज गोइंग टू चेक कि नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बट ऑब्वियसली ऐसा कंसिडर हो जाता है बहुत बार। आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं, आई एम सेइंग कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अगर हमने रिएक्शन परफेक्ट लिखी है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट होगा। ओके, तो वो आपको ध्यान से करना है। देन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज O3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है हम लोग रीडिंग बुक की करते नहीं है, तो हमें पता नहीं होता है कि ये भी दिया हुआ है बुक में। तो हमें स्ट्रेटोस्फियर पता होना चाहिए कि ओजोन कहाँ पे है, कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में। सो इट इज देयर इन स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का स्पेलिंग 10 बार लिख के आप लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर। अब ये भी क्वेश्चंस बहुत बार अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने बोला कि केस बेस्ड क्वेश्चन करके बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तो अल्टीमेटली आपको लिखना क्या है कि रोल ऑफ सैप्रोफाइट्स, कि सैप्रोफाइट्स का क्या रोल भी है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। सैप्रोफाइट्स अगर सपोज सैप्रोफाइट नहीं रहे इन द यूनिवर्स, इफ सैप्रोफाइट विल नॉट बी देयर, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं अगर सैप्रोफाइट नहीं रहे? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता है कि फूड चेन में हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। तो फूड चेन में वैसे भी अगर आप देखोगे साइकिल, फूड साइकिल अगर देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सैप्रोफाइट्स आते ही है। और अगर सैप्रोफाइट्स नहीं है, अगर वो भी मिसिंग रहे, तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैप्रोफाइट्स हैज़ अ ग्रेट रोल। जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स सिंपल जो फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सैप्रोफाइट्स का काम है कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिटर्न बैक करना है एनवायरनमेंट को। दैट इज़ अ रोल ऑफ सैप्रोफाइट। तो इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर क्वेश्चन आया तो नो लिख के उसका जो सैप्रोफाइट्स है उसका रोल लिखना है आपको। और रोल लिखने के बाद अगर वो नहीं रहे, अगर वो सिंपल न्यूट्रिएंट बैक टू द एनवायरनमेंट नहीं गए, तो अगेन हाउ वी विल गेट, तो सम डे विल कम कि सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, राइट। सो दिस विल नॉट वर्क। और इसीलिए सैप्रोफाइट का बहुत बड़ा रोल है, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम। देन biomagnification. See, this is the most favorite question of board exam, sorry board people. तो बायोमैग्निफिकेशन, अब ये क्वेश्चंस मैंने जैसे बोला कि इन केस बेस्ड फॉर्म भी पूछे जा सकते, कि जैसे कि अगर पेस्टिसाइड्स का अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, वेदर यू आर गोइंग टू गेट इन टाइगर और डियर और प्लांट इन अ फूड चेन, ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपको बायोमैग्निफिकेशन ही लिखना है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि बायोमैग्निफिकेशन जब आप लिखोगे तो वहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, अगर केस बेस्ड है तो। अगर डेफिनेशन है तो एज सच आपको डेफिनेशन लिखने की, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। बट अगर केस बेस्ड है तो आपको वो बायोमैग्निफिकेशन वर्ड है उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके वजह से होगा क्या कि जो पेपर चेकर है उसको समझ जाएगा कि इसने बायोमैग्निफिकेशन बेस्ड ये आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर करेक्ट ही होगा। तो ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, तो आप लोग चेकिंग से बच जाओगे ज़्यादा। जितना आप सामने वाले का काम इजी करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा, राइट।
तो आपको बायो मैग्निफिकेशन पे ये कर लेना है। अगर डेफिनेशन पूछते तो एक आध एग्जाम्पल आप लिख लो, और अगर वो केस बेस में पूछते तो केस बेस का जो एग्जाम्पल है उसे एक्सप्लेन करके बायो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिख दो. You will be getting the full marks. Okay. So yes, there is one more question. CFC, full form of CFC, you must know. See, ये तो सब ऊपर ऊपर थोड़ा पढ़ लेना. Full form of CFC, chlorofluorocarbon, and UNEP, full form of UNEP. ये तो थोड़ा ऊपर ऊपर full form वगैरह पढ़ लेना. ठीक है. Thank you.